is the difference between hub and switch? When we start a communication between different devices, for example, when we want to connect computer A with computer B, so there are different methods to provide a connectivity between different devices. For that purpose, we use hub and switch. A hub and switch are both networking devices that connect multiple devices together. In general, switches are a better choice for most networks. They offer better performance, security, and flexibility than hubs. However, hubs are still good option for small network with low traffic volume. और फर्दर हम इसकी डिस्कशन करें तो हब स्मॉल नेटवर्क के लिए बेस्ट ऑप्शन है एज वेल एज स्विच इज़ अ बेटर फॉर लार्ज स्केल नेटवर्क इट इज़ फास्टर देन हब और इससे हमारी कम्युनिकेशन फास्ट होती है चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज होती हैं इसमें मैक टेबल बनता है यूनिक कास्टिंग होती है फर्दर डिस्कशन हम लोग इसकी फर्दर स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे हब कैसे काम करती है हब के अंदर ब्रॉडकास्ट इनकमिंग डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस operate at physical layer of OSI model shared bandwidth among all connected devices. For example, PC1 device 20 से अगर कम्युनिकेशन करना चाहती है तो इसकी हब के सिनेरियो में जितनी भी नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस होंगी सबके पास मैसेज फॉरवर्ड होगा इन द शेप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इससे क्या होता है इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती है एज कंपेयर टू स्विच हब के सिनेरियो के अंदर फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है कि ड्यू टू इट्स ब्रॉडकास्टिंग नेचर hubs can cause network congestion and collisions, especially as the number of connected devices and data traffic increase. It leads to slow data transmission and reduce overall network efficiency. शेयर्ड बैंडविड्थ के एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक हमने स्विचिंग डिवाइस लगाई है जिसकी स्पीड 100 Mbps है 100 megabits per second if four devices are connected with the switch तो स्विच के साथ जब फोर डिवाइसेस कनेक्ट होंगी तो ईच डिवाइस को 25 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से स्पीड मिलेगी और जैसे जैसे हम डिवाइसेस को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड और इसकी परफॉर्मेंस स्लो डाउन होती जाएगी दिस shared nature of hubs operation can lead to increased collisions, decreased efficiency and slow data transmission speed. और स्विच के सिनेरियो में क्या होता है स्विच फॉरवर्ड्स डेटा specifically to the intended device operates or operates at data link layer of the OSI model creates separate collision domains offer dedicated bandwidth to each port अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर 20 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो हर एक यूनिकास्ट करेगा यूनिकास्ट करने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है जबकि हब के सिनेरियो में ईच एंड एवरी डिवाइस ब्रॉडकास्ट करती है स्विच के अंदर यूनिकास्ट होने की वजह से फॉर एग्जांपल अगर एक स्विच है 100 Mbps का है और उसके अंदर 20 डिवाइसेस कनेक्टेड है तो हर एक को 100 Mbps स्पीड ही मिलेगी क्योंकि ये शेड मीडियम नहीं है ये डेडिकेटेड मीडियम है स्विच के डेडिकेटेड मीडियम होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है इसलिए हब ऑब्सोलीट हो चुकी है और स्विचेस को मोस्टली नेटवर्क्स के अंदर यूज़ किया जाता है स्विचेस आर मोर एफिशिएंट बिकॉज दे ओनली सेंड डेटा टू द स्पेसिफिक डिवाइस ओनली यूजिंग मैक टेबल की डिस्कशन हम लेटर ऑन करेंगे क्योंकि मैक टेबल ही हेल्प आउट करता है कि कैसे कंप्यूटर बी से यूनिकास्ट करेगा switches create separate collisions domains for each port this means that data transmission between two devices connected to a switch occurs without collisions with other devices improving the network efficiency in summary, switches are more efficient than hubs in managing network traffic. In contrast, hubs simply broadcast data to all connected devices, leading to congestion and reduced network efficiency. Consequently,
Switches are the preferred choice for modern networks due to their superior performance and data handling capabilities. Switches develop and maintain MAC tables to facilitate the efficient forwarding of data to the appropriate devices within a network. Learning process. When a switch receives an Ethernet frame data packet, it inspects the frame's header, specifically the source MAC address. The switch records the source MAC address and the port on which it received the frame. The MAC table entry, it creates an entry in its MAC table that correlates the source MAC address with the port through which the frame arrived. For example, it logged the MAC address A1, B2, C3, D4, E5, F6। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैक एड्रेस लिया गया है और उसको मैप कर दिया जाता है मैक एड्रेस को विद पोर्ट एड्रेस ताकि फ्यूचर के अंदर यूनिकास्ट किया जा सके, कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। The switch keeps updating this MAC table with each new frame it receives, associating MAC address with their corresponding ports. Aging process. MAC tables have an aging mechanism that removes entry after a certain period. If no data if if no new data is received from the MAC address, this prevents the table from growing indefinitely. Aging timer can range from around 5 minutes to 5 hours or more. However, many switches allow the network administrator to adjust and configure this aging time based on the network's needs and dynamics. जब हम स्विचिंग डिवाइसेस की बात करते हैं तो मैनेजेबल स्विचिंग डिवाइसेस होती है और अनमैनेजेबल स्विचिंग डिवाइसेस होती है। जो अनमैनेजेबल स्विचिंग डिवाइसेस होती है उसके अंदर तो एजिंग टाइमर डिफ़ॉल्ट होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और मैनेजेबल स्विचिंग डिवाइसेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के पास चॉइस होती है, अगर वो टाइमर्स के अंदर कोई वेरिएशन ऐड करना चाहे या एज़ पर चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टाइमर का टाइम एक्सटेंड करना चाहे तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं इसको चेंज करने के। तो इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है नेटवर्क रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग उसके टाइमर को चेंज कर सकते हैं ताकि मैक टेबल के अंदर एंट्रीज ज़्यादा देर तक स्टे कर सके। फॉरवर्डिंग डिसीजंस कैसे होते हैं जब एक पैकेट अराइव्ड होता है स्विच के ऊपर और देन स्विच कैसे फॉरवर्ड करता है। व्हेन अ फ्रेम अराइव्स एट द स्विच इट इंस्पेक्ट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन द मैक टेबल। If the MAC if the MAC address is found, then switch forwards the frame only to the port associated with MAC address. This ensures that the data packet reaches the intended device, means targeted device or computer directly. For instance, if a computer with the MAC address, for example MAC address mention है यहाँ पर, उसको चेक करता है is the intended recipient of the MAC data packet. This switch use its MAC table to determine the port connected to that specific MAC address to forward the data directly to the intended device. अगर एक कंप्यूटर ए से रिक्वेस्ट आती है कंप्यूटर बी के लिए तो जो ही टेबल के पास जो ही स्विच के पास रिक्वेस्ट आएगी वो जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट रिसीव करेगा और जिस मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट रिसीव करेगा उसकी एंट्री टेबल के अंदर ऐड कर लेगा और फिर डेस्टिनेशन एड्रेस को मैक टेबल के अंदर फाइंड आउट करेगा। अगर मैप कर जाता है मैक एड्रेस विद मैक टेबल तो फिर डायरेक्टली उसी पोर्ट पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी जिस पोर्ट के साथ वो मैक एड्रेस मैप किया जाता है, मैप किया गया होगा। अदरवाइज ये क्या करेगा फ्लडिंग करेगा, अदर जो रिमेनिंग पोर्ट्स हैं उनके ऊपर हमारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी और वहाँ से जब एक वापस रिक्वेस्ट रिसीव होगी तो वो जिस कंप्यूटर से के आईपी एड्रेस से वो रिक्वेस्ट रिसीव हुई है
वो टेबल के अंदर उसकी एंट्री और उसकी पोर्ट को सेव कर लेगा ताकि फ्यूचर के अंदर डेटा पैकेट के डिसीजंस के अंदर यूनिकास्टिंग करने में उसकी हेल्प हो सके, ताकि मैक टेबल के थ्रू प्रॉपरली मैनेजमेंट हो और फ्रॉम अ कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो जाए यूजिंग मैक एड्रेस टेबल। जब हम लोग मैक टेबल की बात करते हैं तो मैक टेबल बनाने के लिए जो ही एक फ्रेम या एक पैकेट सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर की तरफ जाता है, तो जो ही स्विच पैकेट को रिसीव करता है, स्विच का हार्डवेयर या फर्मवेयर होता है वो इथरनेट फ्रेम्स हेडर्स को रीड आउट करता है। फ्रेम हेडर हेडर के अंदर डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। अगर हम लोग इस लास्ट रो को रीड करें, the header includes various fields such as preamble, start frame, delimiter, source MAC address, destination MAC address, type and length of the field, payload and CRC। ये वो फील्ड्स हैं जिनके थ्रू फ्रेम में से मैक एड्रेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन वो मैक टेबल के अंदर एंट्रीज को ऐड किया जाता है। इफ द सोर्स मैक एड्रेस इज फाउंड इन द मैक टेबल, द स्विच अपडेट द एंट्री बाय नोटिंग द पोर्ट एसोसिएटेड with the source MAC address. If the source MAC address is not in the MAC table, the switch creates a new entry associating the source MAC address with the port from which the frame arrived. Additionally, the switch examines the destination MAC address to determine if it is present in the MAC table. If the destination MAC address is found, the switch forwards the frame only to the port associated with that MAC address. अगर पोर्ट 1 से रिक्वेस्ट आई और पोर्ट 20 के ऊपर जानी है, तो वो चेक करता है कि पोर्ट 20 के ऊपर जो मैक एड्रेस मैप है वो मैक टेबल के अंदर अगर डायरेक्टली एंट्री एग्जिस्ट करती है तो डायरेक्टली पोर्ट 20 के ऊपर हमारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाती है ताकि फास्टली कम्युनिकेशन हो सके। Ethernet frames consist of the various fields that encapsulate the data being transmitted over the network. Below are the key fields found in an Ethernet frame along with brief descriptions. फर्स्ट भी प्रियम्बल है, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस है। और जब हम प्रियम्बल या फर्स्ट ये जब हम एक पैकेट हेडर को के जब फ्रेम के पैकेट हेडर को या फ्रेम हेडर को रीड आउट करते हैं तो प्रेम्बल फर्स्ट फील्ड होता है। इसका मकसद ये होता है, ये किस लिए यूज होता है, यूज टू सिंक्रोनाइज द रिसीविंग एंड विद द इनकमिंग बिट स्ट्रीम्स। The preamble help us to synchronize the sender and receiver clock rate so that they can accurately interpret the data in the frame. सेंडर और रिसीवर का क्लॉक रेट मैच होता है। अगर उसके अंदर कोई डिस्टरबेंस हो तो पैकेट एक्यूरेटली रिसीव नहीं होता। तो अगर क्लॉक टाइम सेम हो दोनों रिसीवर और सेंडर एंड पे, तो देन सक्सेसफुली एक्यूरेटली डेटा वहाँ पर ट्रैवल करेगा। marks the start of the frame and indicate that the actual data is following। वो डेटा पैकेट के साथ मार्क कर लेता है ताकि कम्युनिकेशन के अंदर कोई एरर ना आए और फिर सेकंड पैकेट थर्ड पैकेट इसी तरह चीज़ें उसके पास रिसीव होती रहेंगी। क्योंकि डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए जब डेटा आता है तो वहीं पर फ्रेम्स के थ्रू या हो सकता है एक ही सोर्स से मोर देन वन टाइम डेटा रिसीव हो, तो वहाँ से मार्क कर लेता है ताकि उसका जो फॉलोइंग डेटा है या बाद में आने वाले डेटा है वो भी उसी सीक्वेंस के साथ रिसीव करे और फॉरवर्ड करे ताकि कम्युनिकेशन के अंदर कोई एरर ना आए। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस सोर्स से रिक्वेस्ट आती है ऑब्वियसली वो किसी ना किसी डेस्टिनेशन पर जाएगी। तो ये जो हेडर होता है, ये जो फील्ड्स हैं, इनके अंदर हेडर के अंदर सबसे पहला प्रियम्बल है, फिर स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर है और फिर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है और फिर सोर्स मैक एड्रेस होता है। तो यहाँ से चीज़ों को नोट डाउन करके मैक टेबल के एंट्रीज को कंप्लीट किया जाता है। और उसके बाद टाइप और लेंथ है। ये 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 जो फील्ड है इसके अंदर ये
indicates either the type of the protocol being used within the data field or length of the frame. जब एक पैकेट ट्रैवल करता है या एक फ्रेम आता है फ्रॉम वन सोर्स टू अदर सोर्स, उसमें चेक किया जाता है कि इसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है। वो टाइप के फील्ड के अंदर उसकी डिटेल मेंशन होती है कि ये टीसीपी है या यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है टू फॉरवर्डिंग अ पैकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। और आफ्टर दैट एक डेटा फील्ड होता है। डेटा फील्ड के अंदर बेसिकली डेटा फील्ड इज आल्सो कॉल्ड पेलोड। पेलोड के अंदर एक्चुअली वो डेटा होता है जो हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं फ्रॉम सोर्स ए टू सोर्स बी। तो वो जो एक्चुअल डेटा होता है दैट इज स्टोर्ड इन द डेटा फील्ड। और लास्ट में CRC होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस, contains error checking information used to detect any error in the frame। अगर फ्रेम के अंदर, अगर डेटे के अंदर किसी किस्म का कोई एरर हो या सीक्वेंस ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर वहाँ पर एरर हो जाता है और डेटे को या तो रीसेंड करवाया जाता है या वहाँ पर एरर शो किया जाता है। और अगर आप लास्ट जो हाइलाइटेड ब्लू एरिया है यहाँ देखें तो ये पूरे का पूरा वो जो पैकेट है उसका सीक्वेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रीएम्बल है, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर है, डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस होता है, सोर्स एड्रेस होता है, और उसकी टाइप है, टाइप के अंदर हम प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं, और उसके बाद डेटा होता है और फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह इनकमिंग लेक्चर के अंदर हम लोग नोट डाउन करेंगे कि मैक एड्रेस को फर्दर कैसे एक्सप्लोर करते हैं और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का रोल क्या होता है, ताकि चीज़ों को इन डेप्थ डिस्कस किया जाए। और अगर हमें किसी सिनेरियो के अंदर आर्प की डिटेल्स को देखनी पड़े और मैक एड्रेस के टेबल को थोड़ा सा फर्दर स्टडी करना पड़े, तो हम लोगों के पास तो अगर बेसिक नॉलेज होगा तो जब इसकी एडवांस स्टडी में जाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो लेक्चर है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत शुक्रिया।